آج ایک غیر انسانی واقعہ 12:30 بجے سول اسپتال کوئٹہ سرجری وارڈ میں رونما ہو چکا تھا، جس میں ہمارے ایک فیمیل پی جی جو سرجری ڈپارٹمنٹ میں پی جی ہے، اس کے چہرے پر اور اس کے پورے باڈی پر تیزاب پھینکی گئی ہے۔ صرف ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ بندہ لفٹ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا، جو کہ پرائیویٹ ملازم ہیں۔ صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر فورم پر اپنے سیکیورٹی جس اسپتال میں ہم موجود ہیں، یہاں پہ بھی آئے روز ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعہ رونما ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا تھا جس میں ہمارے ایک فیمیل ڈاکٹر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، جس کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان نہ صرف مذمت کرتی ہے بلکہ یہ واضح کرتی ہے کہ ہمارے چار دیواری کے اندر جو ڈاکٹرز موجود ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی شخص جس کا تعلق جس بھی طبقے سے ہو، وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان اپنی ڈاکٹر کی تحفظ کے لیے اپنی تمام تر انرجی اس کی مزاحمت میں لگائے گی اور تمام ڈاکٹرز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھے گی۔ معزز صحافی حضرات، یہ واقعہ جو آج رونما ہو چکا ہے، یہ صرف آج کا واقعہ نہیں بلکہ گزشتہ کئی مہینوں سے یہ مسئلے ہمارے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ 15 دن تک سیکٹری ہیلتھ کے آفس کا چکر لگا رہے ہیں، اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا یہ سیکٹری ہیلتھ اپنے سیٹ پر موجود ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے پی ایس کو کال کر لیتے ہیں تو جواب یہی ملتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوف یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جائے اس کو یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بٹھانے کا مقصد کیا ہے۔ جو ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا، اس کا ٹوٹل انرجی صرف اس چیز پہ ہے کہ ٹینڈر کیسے کرنا ہے، کرپشن کہاں سے کرنا ہے، کرپشن کیسے کرنا ہے، اور کرپشن کے اوپر کیسے پردہ ڈالنا ہے۔ معزز صحافی حضرات، سول اسپتال یا پھر کوئٹہ میں جتنے بھی ٹرشری کیئر ہاسپیٹلز ہیں، بولا میڈیکل کمپلیکس ہاسپیٹل، شیخ زید ہاسپیٹل، بے نظیر ہاسپیٹل، فاطمہ جنو ہاسپیٹل، یہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہوگا کہ ایک ایکٹ پاس ہو چکی ہے جس میں بورڈ منتخب بھی ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی سے اس ایکٹ پر صرف اس وجہ سے عمل نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایم ایس ایز بٹھائے گئے ہیں، جن کو ایک اسپتال کے بجائے 2 3 اسپتال کا ہیڈ بنا کے ان کو بٹھائے گئے ہیں، کہ آپ کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے کہ کرپشن کی راہ ہمارے لیے ہموار کر دیں۔ معزز صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس سے ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سیکٹری ہیلتھ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی آفیسرز ہیں، یہ آفیسرز صرف کرپشن کرنے کے لیے آ چکے ہیں، جس کو ہم صرف آج بلکہ نہیں، اس سے گزشتہ 2 سالوں سے ہم یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، آپ تمام حضرات کو بھی اس چیز سے ہم لوگوں نے آگاہ کیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت چل نہیں رہی ہے، بلکہ اس دھندے کے تحت وہ لوگ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ آج سیکٹری ہیلتھ اگر اپنے اس کارکردگی پر نظر ثانی نہیں کرتی، اپنے اس بھیجے گئے کرپٹ آفیسرز کو، جو ایم ایس کی شکل میں ہو، ڈی ایم ایس کی شکل میں ہو، چاہے اسپتال کے کسی بھی انتظامیہ کے شکل میں ہو، ہم صرف ان کو نہ صرف انتظامیہ سمجھتے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ بندے ہیں، جن کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اسپتالوں کو غریب عوام کے لیے بند کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے جائیں گے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک ایسا نظام لائیں جس میں ہماری آڈٹ نہ ہو، ہم ایک ایسا نظام لائیں جس میں
हमें करप्शन के ज़्यादा मौके पहुँचे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये वाज़ा करना चाहते हैं कि सिविल अस्पताल कोयटा में मौजूद जो भी शख्स एमएस की सीट पे बराजमा है, इसको फिलफौर हटाया जाए, क्योंकि अस्पतालों में न सिर्फ डॉक्टर्स महफूज हैं, बल्कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर के साथ जो वाक़या पेश हुआ था, वो सर्जरी वार्ड में ड्यूटी पे मौजूद थे। इसी चार दीवारी के अंदर आए रोज़ हमारे डॉक्टरों के साथ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई नाम ही नहीं है कि हम लोग कहें कि जो सिक्योरिटी मौजूद है इसको मज़ीद मजबूत किया जाए। हम यही कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की कोई नाम भी नहीं है। आज जो वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें हमारे फीमेल पीजी को कत्ल करने की साजिश की गई, उसके चेहरे और बॉडी पर जो तेज़ा फेंकी गई, हम समझते हैं कि एक साजिश के तहत और इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हमारे डॉक्टर को कत्ल करने की कोशिश की गई है। जो आर्या अस्पताल में मौजूद है 35% उसको बंद हो चुकी है। और ये वाक़या जहाँ पे हुआ था, मौज़ साफ़ी हज़रात, आप लोगों के लिए में होगा कि ये प्लास्टिक सर्जरी वार्ड के सामने ये वाक़या हुआ था। होना तो ये चाहिए कि हम अगर ये अस्पताल उनके निस्बत जो सेक्रेटरी हेल्थ या उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके तहत आए रोज़ मीडिया के दोस्तों को कहते हैं कि सिस्टम सही चल रही है, अगर ये सिस्टम सही होता तो हम अपने डॉक्टर को 2 से 3 मिनट में इसी वार्ड में प्लास्टिक सर्जरी में एडमिट करवा देते। बदकिस्मती से यहाँ से हमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करवाना पड़ा आर्या हॉस्पिटल, जो कि ये वाज़ह करती है कि यहाँ पे कोई सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है। जब किसी डॉक्टर को ये सहूलियात फराम नहीं, तो गरीब आवाम के लिए हम तो पहले से ये कह रहे हैं कि इन अस्पतालों में उनकी तमाम इलाज और मुआलजे की सहूलियात बंद कर चुके हैं। इस वाक़े में मुलविस सिक्योरिटी इंचार्ज चाहे जो भी है, उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और जिस भी बंदे ने ये गैर इंसानी हरकत की है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम सेक्रेटरी हेल्थ को ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हम आए रोज़ आपके पास यही मुतालबा लेके आते हैं कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने यही सिक्योरिटी इशू के ऊपर कॉल किए हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो यहाँ मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो डिस्कस कर ले। हम गुज़िश्ता 15 दिनों से सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफ़िस का चक्कर लगा रहे हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी दी जाए। आज से 1 हफ़्ता पहले हमारे एक सीनियर रजिस्ट्रार जनरल सर्जन के साथ भी इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ था, तब भी इन लोगों ने इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया। हम ये वाज़ह कर देना चाहते हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट की वारिस है। हम न हेल्थ सेक्रेटरी को अपना सेक्रेटरी मानते हैं, न ही वहाँ पे जो करप्ट बंदे बैठे हुए हैं हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो हमारे लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाएं कि जिससे हमारे मरीज़ और डॉक्टरों को फ़ायदा हो सके। उनकी नीयत सिर्फ एक चीज़ पे है कि अस्पतालों को घसीटो, अस्पतालों को गरीब आवाम के लिए बंद कर लो, डॉक्टरों को दीवार से लगा लो और ख़ुद शाही ख़ानदान की तरह हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 1 मरतबा सलाम डालकर वापस चला जाए। मैं वाज़ह तौर पर कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ को कि जनाब, ये डिपार्टमेंट किसी के बाप का नहीं है। ये डिपार्टमेंट के इस हेल्थ डिपार्टमेंट के वारिस हम हैं। इस हेल्थ डिपार्टमेंट के वारिस हम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से ये ऐलान करना चाहते हैं कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को फारिग कर दिया जाए। इस मौसूफ का अब कोई हक नहीं कि वो इस चेयर पर काबिज़ हो, जिसकी कारकर्दगी की वजह से हमारे न डॉक्टर्स महफूज हैं, हमारे न ही मरीज़ों को सहूलियत फराम हो सकते हैं, हमारे डॉक्टरों को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। तो हम ये मुतालबा करते हैं
कि सिक्योरिटी इंचार्ज को जल्द अज जल्द फारिग किया जाए और सिविल इंतज़ामिया के एमएस को फारिग कर दिया जाए और जिस भी लड़के ने ये हरकत की है उसको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए, जिसका अल्टीमेटम हम लोग 12 घंटे के देते हैं। अगर उसको 12 घंटे में गिरफ़्तार नहीं किया गया तो इंशाअल्लाह हम मज़ीद सख्त एहतजाज की तरफ जाएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे शख्स बैठे हुए हैं, वो चाहे हमारे डॉक्टर्स की शक्ल में हो या ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में हो, उनका मकसद सिर्फ ये है कि हेल्थ में जितने भी डॉक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं उनको दीवार से लगाया जाए। तो हम न दीवार से लगने वाले हैं, न ही किसी के इस तरह के गैर मुनसिफाना पॉलिसी से डरते हैं। हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को इंसाफ फराम किया जाए, हमारे डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराम की जाए और सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ की पोजीशन से निकाला जाए, जिसका कोई हक नहीं कि वो अब मज़ीद हमारा सेक्रेटरी हेल्थ रहे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, 2022 में एक एक्ट पास हुआ था पंजाब हुकूमत की तरफ से, यही सिक्योरिटी के हवाले से। हम ही ने फैसल जमाली जो हेल्थ मिनिस्टर था उसको ये एक्ट दे दिए कि भाई आप बलूचिस्तान के काबीना से ये एक्ट पास करवा लें। 2022 से लेकर 2026 तक अभी तक इस तरह का कोई एक्ट न पास हो चुका है, न इस पे कोई संजीदगी हमें नज़र आ रही है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुल से हम ये वज़ीर आला और चीफ़ सेक्रेटरी को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहते हैं कि हम अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम सही रन करे तो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर संजीदगी दिखाएं, सेक्रेटरी हेल्थ को हेल्थ डिपार्टमेंट से फारिग कर दें और हेल्थ में जो करप्शन हो रही है उसी की वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुल से हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपने तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी को जो इस वक्त सिविल अस्पताल में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। एज ए प्रेसिडेंट, एज ए तंजीम यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान, हम ये ऐलान करते हैं कि सिविल अस्पताल में इलेक्टिव सर्विसेज का बाइकाट किया जाता है और सिर्फ एमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगे, बाकी इलेक्टिव सर्जरीज सिविल अस्पताल में बंद हो जाएंगे। अगर हमारे मुतालबात पर कोई संजीदगी नज़र नहीं आई तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम लोग पूरे बलूचिस्तान के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन तमाम अस्पतालों में सर्विसेज का बाइकाट कर लेंगे इंशाअल्लाह। कोई दूसरी बात करना मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। आज का जो वाक़या पेश आया ये तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच में जो है ये वाक़या पेश आया। जनरल सर्जरी के ब्लॉक में जब यह डॉक्टर अपनी स्टडी रूम में स्टडी कर रही थी तो लिफ्ट पर मामूर प्राइवेट कंपनी का जो एहलकार था जिसकी सर्विसेज ये थी कि उसने लिफ्ट में लोगों को फैसिलिटेट करना था, वो डॉक्टर को जब देखता है उसके मोटिव्स का हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि उसके पीछे उसके मोटिव्स क्या थे, लेकिन वो डॉक्टर्स को फॉलो करता है। 12:30 बजे के करीब वो डॉक्टर के स्टडी रूम के पास जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है। जैसे ही डॉक्टर साहिबा बाहर आती है तो वो उन पर एसिड जो है वो उनके फेस पर फेंकता है। हाँ, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि आज हमें ये बात आज याद नहीं आई है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हमारी डॉक्टर साहिबा को बचाते हुए जो वहाँ पे एमटी स्टाफ था ऑर्थोपेडिक वार्ड का, जो मुलजिम था वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुआ। वो डॉक्टर साहिबा को फैसिलिटेट और उनकी हेल्प करने जब पहुँचा है
تو ساتھ میں ان کو بھی جو کیمیکل نیمونائٹس ہے وہ ہوا ہے اور ان کو بھی برن آئے ہیں. ظاہر ہے جب انہوں نے ڈاکٹر کو جو ہے نا بچانے کی کوشش کی ہے تو یہ 2 کیجویلٹیز جو ہے وہ ہوئی ہے. دونوں کو اس وقت آریہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر کے لیے جو ہے وہ ایئر ایمبولینس کا بندوبست ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کی انجریز کا میں اگر آپ کو بتاؤں تو ڈاکٹر کو 15% باڈی برن ہوا ہے, جس میں ان کے دونوں کارنیل جو ہے ان کو ڈیمیج ہوا ہے, ان کی دونوں آنکھیں. ان کی بینائی کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ ابھی کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا, اس کو ابھی اسیس کیا جا رہا ہے. اور جو ایم ٹی اسٹاف تھا اس کو بھی یہاں پر جو فرسٹ ایڈ سہولیات ملنے کے بعد آریہ ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا گیا ہے. وہاں پر ان کو اسیس کیا جائے گا. اگر ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ پاسبل نہیں تھا, پھر ان کو بھی کراچی جو ہے وہ شفٹ کیا جائے گا along with ڈاکٹر صاحبہ جو ہماری ہے. آپ کے سوال پر آتا ہوں میں. سیکیورٹی لیپسز پچھلے 2 سال سے ہم گورنمنٹ اور ہیلتھ منسٹر, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کی ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. دیکھیے ہم ینگ ڈاکٹرز جو وارڈ میں موجود ہیں, آپ تو وہاں پہ پالیسیز بنا دیتے ہیں, آپ تو وہاں پر فیصلے کر رہے تھے, لیکن آپ کا سروس پرووائڈر جو ہے وہ وارڈ میں ڈاکٹر پی جی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے, تو آپ کس بات کی ایڈمنسٹریشن ہے اور آپ کون سی پالیسی وہاں پر بیٹھ کے بنا رہے ہیں. اگر آپ کو وہاں پر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ ہمیں ارجنسی اور ایمرجنسی کا ڈفرینس بتائیں, تو پھر آپ جا کر کسی اسکول میں ٹیچنگ کریں, پھر آپ کو سیکٹری ہیلتھ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ان کو تعینات کیا ہے. ایسے سیکیورٹی گارڈز کا کیا فائدہ کہ جب اس طرح کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ جو بندہ ہے وہ آرام سے ٹہلتے ہوئے ہاسپٹل سے فرار ہو جاتا ہے, اور گیٹ پر موجود جو سیکیورٹی اہلکار ہے وہ اس خوف سے اس کے قریب نہیں جاتا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خودکش ہے. اگر وہ خودکش ہے, اگر آپ ہم ڈاکٹرز کو بڑی آسانی سے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کام ہے مریض کا علاج کرنا, تو پھر سیکیورٹی اہلکار کا بھی کام تھا اس کو پکڑنا. اگر آپ ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو ہمیں بتا دیں, پھر ہم اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کر لیں گے. اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ بتا دیں, پھر ہم خود کر لیں گے. جو بھی ہم نے اپنے تحت اپنی مدد آپ کے تحت اب کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جو ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے. اس سے زیادہ ایکسٹریم سٹیپ, اس سے زیادہ ایکسٹریم واردات جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے بتایا کہ ہم اپنی سروسز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ہم تمام الیکٹیو سروسز اور وارڈ میں جو ایمرجنسی سروسز, جو ایمرجنسی پیشنٹ آتے ہیں, جب تک اس بندے کو, اس کرمنل کو گرفتار نہیں کیا جاتا, جب تک ڈاکٹرز کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی, ہم اپنی سروسز نہیں دیں گے. جب شہر کے بیچ و بیچ ہم لوگ محفوظ نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی سروسز دیں. ہم اپنی سروسز اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک سٹیک ہولڈرز, تمام سٹیک ہولڈرز جن کی ذمہ داری تھی یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, سیکرٹری ہیلتھ ہو, ایم ایس ہو یا ہیلتھ منسٹر ہو, جب تک یہ اپنے استعفے, ان کو شرم سے اخلاقی طور پر اپنے استعفے ابھی پیش کر دینے چاہیے. یہ واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کا واقعہ ہے. آپ نے صرف ایک ڈاکٹر کی جو ہے نا ایگزسٹنس کو چیلنج نہیں کیا, آپ نے کوئی بھی وجہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی فیمیل ڈاکٹر پر یا کسی دوسرے ڈاکٹر پر ایسڈ پھینکے. اور ایک اور سوال, آپ لوگ میڈیا والے ہو, آپ نے بہت زیادہ پریس کانفرنسز سنے ہوں گے, بہت زیادہ شوشائیں سنی ہوں گی. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انقلابی اقدام, فلانا فلانا فلانا. انقلابی اقدام کا یہ دن ابھی واضح ہو گیا کہ آپ اپنے ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہو, تو آپ ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کیا کریں گے. اور دوسری بات, جب آ جاتے ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں ہے, ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں ہے, یہ رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا. آپ یہ بتاؤ مجھے, جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ اس کو آپ نے سیکورٹی دی ہے؟ آج سے 3 مہینے پہلے اس ٹراما سینٹر میں 2 گروپوں نے ایک دوسرے کے اوپر کلاشنکوفیں نکالی تھی. ہمارے ڈاکٹرز وہاں چھپ گئے تھے ٹیبل کے نیچے, کوئی سیکورٹی والے بھاگ گئے تھے, یہ جو آپ کے 2 پولیس والے کھڑے ہوتے یہ بھاگ گئے تھے, کوئی سیکیور کرنے والا نہیں تھا. اس وقت بھی ہم نے یہ آواز لگائی کہ کائنڈلی ہمیں پروٹیکشن دی جائے,
कोई एक्ट पास कर लो पंजाब जैसा जो प्रेसिडेंट साहब ने अभी बयान किया, लेकिन ये जो है ना ख्वाब खरगोश में सोए हुए मस्त हाथी है जो सिर्फ बलूचिस्तान इनके लिए सोने की एक चिड़िया है और बलूचिस्तान को लूटने के लिए आए हुए हैं। रोज़ बरोज़ यहाँ पे जितने भी करप्शन होती है पूरे पाकिस्तान में, वहाँ पे कम अज़ कम ये हो जाता है कि 50% काम हो जाता है। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जिसमें 10% काम नहीं होता है। ट्रामा को कैसे बनाया? गेस्ट्रो का इंस्टीट्यूट बना हुआ था, उसको तोड़ दिया, उसके नए नए दरवाजे निकाल दिए, ट्रामा का नाम दे दिया। अब ये ट्रामा कौन चलाएगा, वो ट्रामा कौन चलाएगा? ये वाला सिस्टम नहीं है। ये ट्रामा कब बना था? जब हादसे होते तब हमारे हुक्मरान जो है वो नींद से उठते। ये ट्रामा तब बना था जब 8 अगस्त की शोहदा का वाक़या हुआ था, उस वाक़ये के बाद ये बना था। आज ये डॉक्टर का वाक़या हुआ है, अब ये आके आएंगे, अब फलाना किया, हमने ट्रीटमेंट के लिए उसको जो है ना वो एयर एम्बुलेंस का सिस्टम दिया। कोई चीज़ किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। आप हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कर लो, आप काबिल अफसरान को बिठाओ। 18 ग्रेड का ऑफिसर बिठाया हुआ है 21 ग्रेड के पोस्ट पे, ये इनकी एहलियत का तकाजा है। डॉक्टर खुलेआम कहना चाहते हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान, जो इनके जुल्मों को, हमारे घरों पे छापे पड़े हैं, हमारे डॉक्टर जो है ना उनको शोकाज़े मिले, उनके जॉब्स ख़त्म हुए, हमारे प्रेसिडेंट साहब को शोकाज़ मिला था, उसका जॉब जो है ना ख़त्म करने की साजिश के लगे हुए। ये हमारे मुंह बंद नहीं कर सकते। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा है, हमने 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 12 घंटे के बाद हम तमाम सूबे में बंद करेंगे हॉस्पिटल्स। उसके बाद भी अगर ये मस्त हाथी जो है ना ख्वाब खरगोश से नहीं उठते तो उसके बाद हम जाएंगे, फिर इमरजेंसी से भी विड्रॉल करेंगे, इमरजेंसी के बाद जाएंगे, फिर प्राइवेट को भी बंद करेंगे। जब तक कोई डॉक्टर सेफ नहीं होगा, जब तक प्रॉपर सिक्योरिटी का कोई फार्मूला पेश नहीं होगा, तब तक हम ड्यूटियाँ नहीं देंगे। देखें, डॉक्टर की जो कंडीशन थी वो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये प्लास्टिक सर्जरी वार्ड के सामने ये वाक़या रूनमा हुआ था। अगर यहाँ पे सहूलियात होते तो हम लोग यहीं एडमिट करवा के कम अज़ कम फ़र्स्ट एड तो अपने डॉक्टर को फराम तो कर सकते थे। देखिए, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम, हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पे पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका है। यहाँ पे जब हम डॉक्टर एज ए डॉक्टर हम कहते हैं कि हम अपने ही डॉक्टर को इलाज नहीं कर सकते हैं, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि गरीब आवाम के लिए यहाँ पे इलाज की सहूलियात मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि सिक्योरिटी एमएस साहब के साथ 3-4 सिक्योरिटी होते हैं, देखें ये सवाल हमारा भी है कि आप इंतज़ामिया हो, ठीक है ना, आप अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 4 से 5, 10 अफराद जो है ना सिक्योरिटी पे वो कर लेते हैं, घुमा देते पूरे हॉस्पिटल में। और मेरे डॉक्टर के पूरे वार्ड में आप मेडिसन वार्ड जाएं, जहां पे अभी भी हमारे 20 से 25 डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं और वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं है गेट पे। ये उनकी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश है कि डॉक्टरों को आवाम के तहत तंग किया जाए, डॉक्टरों को इस तरह कत्ल करने की साजिश की जाए। वो ख़ुद अपने आप को तो महफूज कर चुके हैं। वो ख़ुद जिस तरह सेक्रेटरी साहब है ज़िक्र किया था कि वो महीनों तक वहाँ पे मौजूद नहीं है अपने डिपार्टमेंट में, तो हम अब किस से तवक्को करें। एक दोस्त ने सवाल किया था कि मुलजिम की गिरफ़्तारी तक ये जो 12 घंटे आप लोगों ने दिए कि आप लोग से 12 घंटे तक मुलजिम की गिरफ़्तारी की डिमांड करते हैं, कतन इस तरह नहीं है। हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हमारा पहला डिमांड ये है कि इस नाअहल करप्ट शख्स को जो सेक्रेटरी हेल्थ बिठाया गया है, इसको फौरी तौर पर यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दूसरी बात यह है, यहाँ पे जिसकी वजह से, जिसकी नाअहली की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें एमएस मुलविस है, जिसमें यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज मुलविस है, इन दोनों को भी यहाँ से फारिग कर दिया जाए। तीसरी बात यह है कि जहाँ पे भी बोर्ड, उन लोगों ने जो एक्ट पास किया था, बोर्ड बन चुकी है, उसके मेंबर्स मुंतखब हो चुके हैं, उस बोर्ड को फंक्शनल किया जाए। और हम ये वाज़ह कर देना चाहते हैं कि एमएस, वो चाहे बीएमसी का हो, वो चाहे सिविल का हो, मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी बोर्ड बन चुकी है उन तमाम एमएसएस को फारिग कर दिया जाए। हम ये समझते हैं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान ये समझती है कि जितने भी यहाँ पे एमएसएस बिठाए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको इस वजह से बिठाया गया है कि आप लोग हमारे लिए करप्शन की राह हमवार कर लें। इसके सिवा न उनको डॉक्टरों का लगा है, इसके सिवा न उनको किसी मरीज़ की परवाह है। बस उनका एक ही काम है, जिस तरह
डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा था कि ये इतने बदमस्त हैं कि हम जब जाते हैं हमारे जो है ना फरियाद वहाँ के सेक्शन ऑफिसर तक नहीं सुनते हैं, वो अपने आप को हेल्थ डिपार्टमेंट का खुदा समझ रहे हैं। हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि एक तंजीम जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान न सिर्फ आज से बल्कि गुज़श्ता कई सालों से हम लोग अपने डॉक्टरों की हकूक़ के लिए, अपने डॉक्टरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गरीब आवाम के इलाज के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि वो रात की तारीकी में फ़ैसले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें कि हमने ये पॉलिसी किया है, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को इस तरह चलाना है। हम कतन न सेक्रेटरी हेल्थ की इस तरह की कोई पॉलिसी मानते हैं, न किसी मिनिस्टर की हेल्थ से पॉलिसी को मानते हैं जिसमें मेरा डॉक्टर महफूज नहीं हो, जिसमें मेरे मरीज़ को इलाज की जो है ना सहूलियत फराम नहीं हो। हम लानत भेजते हैं इस तरह के पॉलिसियों पे। पता है एज डॉक्टर के यहाँ पे सहूलियत नहीं है, ठीक है। हम ये अभी इंतज़ार तो नहीं करते कि हमारा पेशेंट या हमारी डॉक्टर यहाँ पे जो है ना मौजूद रहे और जिसको कोई सहूलियत मुयसर तक नहीं। तो हमने यही कहा कि आप फ़िलहाल इसको फ़र्स्ट एड के लिए आर्या अस्पताल भेज दें। फिर जो हमारे तंजीम के दोस्त है, डॉक्टर्स कम्युनिटी के दोस्त है, वो सारे आर्या हॉस्पिटल पहुँचे। मैंने ख़ुद डॉक्टर को देखा और जो हमारे प्लास्टिक सर्जरी के जो है ना प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन भी की। उन लोगों ने कहा कि 35% बर्न हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि उसके आंख को भी मुतासिर कर चुकी है। जिस तरह हमारे जो है ना प्रोफेसर हजरात ने जो चेक किए तो उन लोगों ने कहा कि इसके आंख को भी मुतासिर कर दिए हैं। देखिए सहूलियात का अगर आप भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी अगर डॉक्टर की हैसियत से नहीं एज बलूचिस्तानी तो हमें इधर ही से इलाज करवाना है। अभी हम तो ना अफोर्ड कर सकते हैं आरिया को, ना कराची को। हम अपने मरीज़ों को यही लाते हैं और यहाँ का हाल ये है कि हम अपने डॉक्टर को इलाज तक नहीं मुयसर नहीं है हमारे लिए।